So this is the last topic है थोड़ा सा छोटा सा elements. So this was first invented, or this term was introduced by the Robert Boyle. Okay, Robert Boyle in 1661, and which mentioned that he defined that element as a basic form of matter. Element यानी क्या है? उसने बोला था कि ये basic form of matter है. Okay, it is basic form of matter. Okay. So Robert Boyle, इसके नाम पे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं. So basic form of matter. He has given that basic form of matter. Okay. So that cannot be broken down into simpler substances. Okay. That cannot be broken down. That cannot be broken down. That cannot be broken down. And उसको हम लोग break नहीं कर सकते. That cannot be broken down into simpler substances. Into simpler substances. Into simpler substances. और इस एलिमेंट यानी उसने बोला था कि ये बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, और सिंपल कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय एनी केमिकल रिएक्शन, बाय एनी केमिकल रिएक्शन. That was his concept, by any chemical reaction, by any chemical reaction. Okay, so element as per his view, what he has mentioned was the basic form of matter. Element is a basic form of matter that cannot be broken down, that cannot be broken down into simpler substances. Simpler substances में हम लोग उसको convert नहीं कर सकते by any chemical reaction. Okay, so element can be normally divided into, we know that classification of elements. Classification of element कैसे होता है? Yes, generally classification of it in terms of metals, non-metals. Classification of elements, metals, non-metals, और जो तीसरा तीसरा क्या है? Metalloids. Metalloids. These are the three basic classifications of any element. Elements are classified on these three categories: metal, non-metal, and metalloids. So we know about what is metal. क्या है metal की properties? In shortcut में लिखेंगे हम लोग. In short we write down. What are the properties of metal? What are the properties of metal? मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? शाइनीनेस, बराबर है, शाइनिंग करता है. मेटल क्या करता है? शाइनिंग करता है. दैट इज व्हाट इज लस्टर प्रॉपर्टी. शाइनिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द लस्टर प्रॉपर्टी. और क्या बोल सकते हैं हम लोग? यस, उसका कुछ कलर रहता है. मेटल का कुछ कलर रह सकता है, बराबर है, कलर प्रॉपर्टी है. और क्या है? वेरी बिग प्रॉपर्टी इज व्हाट? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्ट, metals conduct heat as well as electricity. Heat and electricity. और क्या प्रॉपर्टी है मेटल की जो आप लोगों को पता है? Yes, it is ductile. What is this ductile property? Can be drawn into wire. Drawn into wire. Drawn into wire यानी उसको, उसके जो है, जो वायर्स बना सकते हैं हम लोग. देखो आप कॉपर, घर पे जो वायर्स है वो चेक करो, किसके हैं? कॉपर के बने हुए हैं, बराबर है. कॉपर क्या है? मेटल है. ओके, उसको, उसके हम लोग क्या बना सकते हैं? वायर्स बना सकते हैं. तो जो मेटल्स के हम लोग वायर जो बना सकते हैं उसको जनरली मेटल बोलते हैं. ओके, डक्टाइल प्रॉपर्टी. अगेन मैलिएबल प्रॉपर्टी. मैलिएबल प्रॉपर्टी. ओके, मींस उसके हम लोग शीट्स बना सकते हैं. ओके, तो जो ये मेटल है उसको हम लोग हैमरिंग करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दीस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ओके, देन sonorous. What is the meaning of this word? Sonorous. They can create sound. Okay, okay. अगर मेटल को हमने किसी हार्ड सब्सटेंस के ऊपर हीट किया तो वो क्या करते हैं? आवाज करते हैं. ओके, सो दे आर sonorous, making ringing sound when it is heat. Okay, so these are the properties of metal. कौन से एग्जांपल्स मेटल के? मेटल के कौन से एग्जांपल्स हैं? What are the metals? Gold, silver, copper, iron, sodium, potassium. Okay, so sodium, potassium, silver, Ag, Au, gold, iron, Fe. So all these are बहुत सारे हैं. Okay, so these are the metals. Okay, so most of the metals they are in solid state. Most of the metals they exhibit in a solid state में मिलते हैं, but except one. Okay, except one. आपने नाम सुना होगा उसका. क्या है? Mercury. Okay, Hg, mercury. Okay, mercury. So this is one metal which exists in a liquid state. ये
किसमें मिलता है हमें, लिक्विड में मिलता है। जनरली मोस्ट ऑफ द ऑल द मेटल्स जनरली ओके आर इन अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड स्टेट में मिलते हैं वो रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे दैट एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। बट ये मर्क्यूरी ऐसा है जो क्या है, मेटल है, इट इज अ मेटल ओके, इट इज मेटल, मर्क्यूरी इज अ मेटल बट दे एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में मिलता है ओके। so these are the properties about the metals. then what are the properties of non-metal? properties क्या है नॉन मेटल का, आर दे शाइनिंग, हो सकते हैं ओके बट जैसे आयोडीन है नॉन मेटल है। सो वैरायटी ऑफ कलर्स होता है इसमें नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल शॉर्टकट में लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स ओके। सो दे आर एग्जिबिटिंग अ डिफरेंट कलर्स, कलर्स शो करते हैं ओके। दे आर नॉट डक्टाइल ओके, नॉट इवन डक्टाइल, नॉट इवन मैलिएबल, यानी उनके हम लोग शीट्स में वगैरह कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ लिखा हुआ है ना, कंडक्ट हीट ओके, नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट, they do not conduct heat and electricity, heat and electricity। बट उसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ पे एक एक्सेप्शन है ओके, ग्राफाइट ओके, ग्राफाइट है ऐसा एक्सेप्शन जो ग्राफाइट क्या करता है, ग्राफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल ओके, ग्राफाइट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको पता होना चाहिए, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओके। सो मोस्ट ऑल द नॉन मेटल्स आर वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट वन ग्राफाइट, ग्राफाइट ऐसा है कि उसका स्ट्रक्चर ही वैसा है ओके, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को ओके। सो दिस आर द फ्यू प्रॉपर्टीज, अगर इनके एग्जांपल्स अगर देखें हम लोग ओके, तो ये ये भी बोल सकते हैं सोनोरस जो है, नॉट सोनोरस मींस दे आर नॉट क्रिएटिंग अ साउंड, सोनोरस ओके। आप लोग देखो ये ओके, सोनोरस मींस व्हाट, क्रिएटिंग अ साउंड, क्रिएटिंग अ साउंड व्हेन दे आर हीटेड, when they are beaten by, when they are beaten by a hard surface, किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर आप मेटल को ये करोगे। एग्जांपल इज स्कूल की बेल, बराबर है ना, स्कूल बेल आपने सुना होगा, बहुत आवाज आता है जोर से, क्यों आता है, क्योंकि वो क्या है, मेटल है ओके, क्या है, दैट क्रिएट्स अ साउंड ओके, दैट क्रिएटिंग साउंड, जो साउंड क्रिएट करता है ओके, जब उसको हम लोग बीट करते हैं, so that is what sonorous property, so they are not sonorous, non metals are not sonorous okay। एग्जांपल्स क्या है इसके, आयोडीन है ओके, सल्फर है, और भी बहुत सारे एग्जांपल, कार्बन है ओके, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बहुत सारे एग्जांपल्स है जो नॉन मेटल्स के हैं ओके। सुनो, हमने बोला है मेटल्स है, नॉन मेटल्स है ओके, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, तो व्हाट इज मेटलॉइड्स, व्हाट इज मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या करेंगे, थर्ड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट ओके। मेटल्स देख लिया हम लोगों ने, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लिया, मेटलॉइड्स क्या होंगे, मेटलॉइड्स आर इन बिटवीन दिस ओके, दोनों के बीच में, so they will show some properties of metals and they will show some properties of non metals, that they are called as the metalloids। so some elements have intermediate properties okay, so some elements have intermediate properties between those of metals, तो यहाँ पे लिखता हूँ intermediate properties, intermediate properties which will show intermediate properties of metal, metals and non metals, metal and non metal की जो प्रॉपर्टी जो शो करेगा, metals and non metals की जो प्रॉपर्टी शो करेगा, that are called as the metalloids, उनको बोलते हैं metalloids, metalloids बोलते हैं okay। so they are called as metalloids, and the example are boron, silicon and germanium okay, boron, silicon and germanium, example is germanium। so these are the examples which will show that some natures of metals and some natures of the non metals, बस इतना ही है, definition ही है हमारे सिलेबस में ओके। so
So now what is meant by compounds? Okay, so we have seen different elements. Elements देखे हम लोगों ने यहाँ पे metals है, non-metals है, again metalloids है. Okay, so we'll see what are the compounds. Okay, compounds क्या है? Okay, compounds किसको बोलते हैं? Okay, so that we will see. Compounds, as the name suggests, it consists of two or more than that different molecules called as the compounds. 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 ये उसके नाम में छुपा हुआ है compounds, which is combined of something. Okay, so compound is a substance composed of two or more elements. Okay, it is composed of, compound is composed of two or more elements. Two or more elements. ओके अगर एक दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर एक साथ आते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? कंपाउंड्स बोला जाता है. ओके, सो केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस. दे आर केमिकली कंबाइंड. ओके, दे आर केमिकली कंबाइंड. केमिकली क्या हो जाते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं. दे आर केमिकली कंबाइंड. दे आर केमिकली कंबाइंड in a fixed proportion. So what do we get when two or more elements are combined? And that we can easily understand. Okay, with the help of this activity, there is a formation of compound. यहाँ पे क्या है? Formation of compound है. यानी क्या है? Two or more elements यहाँ पे क्या किया है? Chemically combined किया गया है. So we'll see activity number 2.10. So all of you look at the activity number T. Activity number 2.10. Activity number 2.10. So look at the activity 2.10. What they have mentioned? Divide the class into two groups. Give 5 gram of iron fillings. दो ग्रुप में डिवाइड करता है. So we'll write down two groups. Activity number 2.10. Yes, divide into two groups A and B. Okay, दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया हमने. Now give 5 gram of iron fillings and 3 gram of sulfur powder. Okay. So 5 gram iron fillings. इसमें हम लोग ये iron fillings are what? The substance जिसमें हम लोग अभी fill करेंगे. क्या fill करेंगे हम लोग? Sulfur fill करेंगे. 5 gram of iron fillings and 3 gram of sulfur powder. दोनों को दिए 3 gram of sulfur powder. दोनों को भी वैसे ही 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर दिया. ओके, सो लुक एट दिस ग्रुप. ग्रुप ए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. चलो नाम चेंज करते हैं, जैसा दिया है वहां पे वैसे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ओके, सो ग्रुप 1 divide the class into two groups. Give 5 gram of iron fillings and 3 gram of sulfur powder in china dish to both the groups. Now group 1, mix and crush iron fillings and sulfur. Mix and crush iron fillings and sulfur. तो क्या करना है? इनको हमें मिक्स करना है. ओके, फर्स्ट ग्रुप को क्या करना है? इसको मिक्स करना है. ओके, सिर्फ क्या करना है? मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर. ओके, तो उनको मिक्स करना है हमें. सेकंड ग्रुप को क्या करना है? मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर. तो मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करना है. ओके, दो कंपाउंड्स को मिक्स करना है एंड हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट. और इसको क्या करना है? हीट, वी हैव टू हीट दिस मिक्सचर. ये जो मिक्सचर फॉर्म जो हो रहा है दोनों के आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स करने के बाद हमें उसको हीट करना है. हीट दिस मिक्सचर एंड देन वी हैव टू हीट स्ट्रांगली टिल इट बिकम्स रेड हॉट. जब तक ये रेड हॉट नहीं बन जाता तब तक उसको हीट करना है. ओके, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल. ओके, तो समझ में आया क्या करना है हमें? तो लुक एट दिस वंस अगेन. और देख लेंगे इसको हम लोग. Right now we have to find out the difference between compounds. और compounds क्या होते हैं? Okay, वो लिखेंगे compounds which are composed of two or more elements and how they are combined? They are chemically combined. So we want to
see whether they are chemically combined or not. तो क्या क्या हमने इस एक्टिविटी में group 1 what they are doing is they are just mixing this iron fillings with sulfur powder, mix कर रहे बस. ओके, तो सेकंड ग्रुप क्या कर रहा है, ये आयरन फिलिंग्स और ये सल्फर पाउडर इन दोनों को मिक्स तो कर रहा है बट साइमल्टेनियसली ये हीट भी कर रहा है. हीट दिस मिक्सचर टिल इट बिकम रेड हॉट. ओके, और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या होता है. चेक फॉर द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन. मैग्नेटिज्म मटेरियल, कौन से मटेरियल में मैग्नेटिज्म आया है वो हमें चेक करना है. देखेंगे हम लोग. ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ the material is attracted towards the magnet or not. Okay, तो इस वाले मटेरियल में मैग्नेटिज्म आ रहा है या फिर इस वाले मटेरियल में मैग्नेटिज्म आ रहा है, that we have to see. देखेंगे इसका भी आंसर. Compare the texture and the color of the material obtained by the groups. Okay, that we will also see. Add carbon disulfide to one of the material obtained. अभी क्या करना है हमें कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करना है, स्टर करना है उसको. ओके, एंड फिल्टर करना है. Add dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to the other part of the material obtained. Okay, perform all above steps. Okay, with both the elements iron and sulfur separately. चलो देखेंगे अभी. So the gas obtained by group 1 is hydrogen. Okay, जब ये जो group 1 है इसको हम लोग जब रिएक्ट करेंगे, okay, किसके साथ, when it is reacted with dilute sulfuric acid, okay, or hydrochloric acid, तो ये कौन सा गैस देगा, ग्रुप 1 हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा. कौन सी गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा जब ये रिएक्ट करेगा. because metal when reacts with the metals when जब react with the acids H2SO4 या फिर HCl के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. ओके, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को. मेटल जब भी रिएक्ट करता है HCl और H2SO4 के साथ, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. क्या करता है, हाइड्रोजन गैस. तो इसमें जो मिक्स जो हो रहा है यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज हो रहा है क्या, नहीं, ओनली फिजिकल चेंज हो रहा है. हम लोग क्या किया, हमने क्या किया, आयरन को सल्फर में बस मिक्स कर दिया है बस, और कुछ नहीं है. बट इन द सेकंड प्रोसेस यस देयर इज अ केमिकल चेंज हैज ऑकर्ड. ओके, अभी जो देखा है हम लोगों ने केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. तो देखो इन सेकंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, देयर इज अ केमिकल चेंज दैट हैज ऑकर्ड. क्योंकि हमने क्या किया, मिक्स तो किया ही किया है बट इसको साइमल्टेनियसली हीट भी किया है टिल इट बिकम रेड हॉट. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सेकंड ग्रुप एज देयर इज अ चेंज इन केमिकल नेचर. ओके, केमिकल उसके केमिकल नेचर में चेंज हुआ है. ओके, so we are getting answers of all these activities. So gas obtained in group 1 is hydrogen. It is colorless, odorless and combustible. समझ में आया, ये गैस क्या है, it is a colorless gas. Colorless है, it is colorless, odorless and जिसका smell नहीं आएगा. It is odorless. Okay, odorless. Yeah, hydrogen gas is colorless and odorless and combustible. हमें पता है हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाता है. Okay, it is not advised to do the combustion test. Okay, क्लास में नहीं कर सकते हम लोग. The gas obtained by group 2 is a hydrogen sulfide. अभी देखो इसमें क्या हुआ है, आयरन और सल्फर मिक्स कर दिया हमने, बट इसमें क्या किया है, हीट किया. क्या किया है हमने, हीट किया. So when we are heating it, the gas which will liberate is a hydrogen sulfide. Okay, the gas which liberate is a hydrogen sulfide. Okay, hydrogen sulfide gas यहाँ से मिलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड. एंड देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, दोनों में डिफरेंस है. ओके, दोनों में डिफरेंस है. ये हमें क्यों मिल रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, बिकॉज़ वी आर हीटिंग इट. यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों सिर्फ मिल रहा है, ओके, क्योंकि अभी इसको हीट भी किया हुआ है और साइमल्टेनियसली इट इज रिएक्टेड विद द HCl एसिड. देखो इस जो मिक्स जो हुआ है इसको HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट किया है हमने. देखो H2 है, हाइड्रोजन मिलेगा. ओके, इसको भी हमने HCl के साथ या फिर H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या मिल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन H2S और ये सल्फर इसके साथ मिक्स हो रहा है क्योंकि हमने उसको हीट किया है. ओके, सो हाइड्रोजन सल्फाइड वी विल गेट. ओके, इट इज कलरलेस गैस. ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कैसी है, कलरलेस है. कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है बट इसका ऑर्डर
ओके, उसका जो स्मेल है इट इज लाइक अ रॉटन एग्स, ओके, इट इज लाइक अ रॉटन एग्स के जैसा उसका स्मेल है। मैं स्मेल लिखता हूं, ओके, ऑर्डर या तो जिसको बोलते हैं, सो इट इज लाइक अ रॉटन एग्स, ओके, जब एग्स जब खराब हो जाते हैं तो उसका जो स्मेल आता है वैसे स्मेल आता है इसका, ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड का। So you must have observed that the products obtained by both the groups shows the different properties. Though the starting material were the same, Group 1 has carried out activity involving a physical change. तो देखो Group 1 ने जो activity जो किया है वो क्या है, सिर्फ physical change. Okay, जो mixing जो किया है that is what simple physical change, physical change. Okay. Whereas in group 2, the chemical change, a chemical reaction that has taken place, chemical change हुआ है, the material obtained by group 1 is a mixture of two substance. The substance give element iron and sulfur. बराबर है? इसमें सिर्फ हमने सिर्फ mix किया है, उसको हमने क्या किया? Physical change किया है. But here in this case, there is a chemical change that has occurred. Okay, chemical change has occurred. So the material obtained by group 1 is a mixture of two substances. Okay, the properties of mixture are the same as that of constituents. The material obtained by group 2 is a compound. Okay, ये क्या मिला है हमें? Chemical, देखो compounds है, यानी क्या है? Composed of two or more elements and they are chemically combined. Okay, they are chemically combined. तो यानी group 2 में हमें क्या मिला है? Compound मिला. तो ये एक्टिविटी हमने किसके लिए परफॉर्म किया? Find out how to get a compound. How to get a compound. On hitting the two elements strongly, we get a compound. On hitting a two elements strongly, देखो यहाँ पे heat क्या है? हमें क्या मिला है? Compound मिला है. Okay, हमें क्या मिला है? Compound मिला है. So the composition of compound is the same throughout. We can also observe that the texture and the color of the compounds are same throughout. Thus, we can summarize the physical and chemical nature of matter in a following graph organizer. Okay, तो आप लोग सब लोग ग्राफ देखो, ग्राफ देख लो. ओके, बस ये वाला लास्ट एक ग्राफ देख लेते हैं और बस आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं यही पे. So graph will see graph of matter. So matter may be solid, liquid, gases. Can be classified into two categories. Okay, one is pure substance. Okay, one is pure substance. Pure substances. Okay, one is pure substance, and another one is a mixture. Another one is a mixture. जो भी हमने दिख रहा है mixture. Okay, this is the last graph. Okay, last topic. Pure substance. Pure substance को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग? Okay, pure substance can be classified as elements. Okay, elements. Elements हमें पता है कि क्या होते हैं elements and compounds. Okay, elements को अभी देखा हमने compounds क्या है, बराबर है ना compounds. Elements भी देख लिया हम लोगों ने और compounds भी देख लिया. Okay, it's very smaller composition element. Okay, cannot be broken down into single pieces. And mixtures. Mixture, कौन सी mixture देखा है हमने? Homogeneous mixture and the heterogeneous mixture. Homogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर देखा है और heterogeneous मिक्सचर देखा है. heterogeneous. Okay, so look at this. A matter is of two types. One is a pure substance, another is a mixture. Okay, so pure substance which are having uniformity. Okay, then pure substance with element that cannot broken down. Okay, मैं यहाँ पे लिखता हूँ that cannot broken down. हमने लिखा है already. Cannot broken down into simpler substances. Broken down to simpler substances. और इसमें हम लोग चेंज नहीं ला सकते. Simpler substance में हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते. That is why the final stage of this pure substance that is called as the elements. Compounds. अभी जो देखा हमने compounds. Okay, have a fixed composition. Okay, can be broken down into elements by chemical or electrochemical reaction. Okay, so compounds. तो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स के. लाइक कॉपर है, बराबर है. कॉपर क्या है? एलिमेंट है. कॉपर क्या है? कॉपर है, हाइड्रोजन है. ओके, सो दीज
कंपाउंड्स क्या है जो फॉर्म होते हैं लाइक वाटर, बराबर है, वाटर। वाटर कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या है फार्मूला वाटर का, ओके H2O, यस 2। तो दीज आर कंपाउंड्स, हमने बोला है डिफाइन क्या है, कंपाउंड यानी क्या है, कंपाउंड आर दी सब्सटेंसेस व्हिच आर मोर देन टू सब्सटेंसेस। ये देखो H, ओके, एंड दे आर बाउंड केमिकली, बाउंड क्या है केमिकली, तो ये देखो वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है H, हाइड्रोजन के भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन का भी एलिमेंट है, दे आर बाउंड केमिकली, दे आर बाउंड केमिकली, ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड एलिमेंट्स। तो कॉपर एंड हाइड्रोजन, ओके, तो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंस, इसको ब्रेक करोगे, ओके, तो कॉपर ही रहेगा, बराबर है ना। कॉपर का अगर एक आयरन पीस लोगे उसको ब्रेक करोगे तो कॉपर ही रहेगा, चेंज होने वाला है, ओके, दैट इज व्हाट द एलिमेंट, इट इज अ सिंपल substance, okay, it is a simpler substance, okay, it is a simpler substance which cannot be broken down, okay। what is homogeneous mixture, हमने पढ़ा हुआ homogeneous mixture में क्या होता है, okay, यूनिफॉर्मिटी रहती है, okay, it is a uniform composition, okay, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है इसमें, और इसमें क्या रहता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बस एग्जांपल से हमें समझ लेना है ये क्या है, ओके। तो यस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन कैसे हो सकता है, एग्जांपल शुगर इन वाटर, इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम लोग, शुगर, शुगर को हमने किसमें मिक्स किया है, वाटर में मिक्स किया है, तो जो कंपोजिशन जो मिलता है वो क्या है, होमोजेनियस कंपोजिशन है, बिकॉज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, शुगर डिसॉल्व हो गया वाटर में, बराबर है ना, तो यूनिफॉर्मिटी दिखती है, कुछ पार्टिकल दिखता है क्या, नहीं, ओके, सो इट इज व्हाट होमोजेनियस, इट इज हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बट हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इसका एग्जांपल क्या कर सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, सॉल्ट लिया और सॉल्ट के साथ हमने शुगर पार्टिकल्स मिक्स कर दिया, मिक्स हो जाएंगे क्या यूनिफॉर्मली, वो नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, इट इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। so the mixture which is uniform is called as a the mixture is the mixture one which is uniform in nature called as a homogeneous mixture। एग्जांपल शुगर वाटर में मिक्स किया, सॉल्ट वाटर में मिक्स किया, यूनिफॉर्म हो जाता है, मिक्स हो जाता है कंप्लीटली, ओके। बट इन केस ऑफ दिस मिक्सचर heterogeneous mixture which is also called as a non uniform mixture, सपोज सॉल्ट और शुगर को हमने ऐड किया, ओके, कॉपर सल्फेट पाउडर को और दिस पोटेशियम मैग्नेट परमैंगनेट को पाउडर को हमने मिक्स किया, तो वो मिक्स नहीं होते, वो क्या होते हैं, सेपरेट सेपरेट ही रहते हैं, ओके। सो दैट इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिक्सचर इज कॉल्ड एज द heterogeneous mixture, okay, समझ में आया। सो दिस वे दिस मैटर इज क्लासिफाइड एंड वी हैव स्टडीड दिस, ओके, हमने पढ़ा है अभी इस चैप्टर में heterogeneous mixture क्या होता है, homogeneous mixture क्या होता है, pure substances that are elements and compounds क्या है हमने पढ़ा। So with this we have completed our chapter.